Good morning, students. Welcome to your maths class. So, students, in last class, we have completed with the exercise 9.2. In today's class, we are going to start with the new exercise from this chapter, Money. The exercise is 9.3. In this in this exercise, we are going to do multiplication and division in money. Okay. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस करेंगे मनीज को लेके ओके एंड देन वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो so first of all I'll do the multiplication problems based on money. So first is I am going to solve the A part from the question number 1 subpart A, and then I'll solve the subpart C of question number 1. So question number 1 subpart A, we have to multiply rupees 476.45 by 2. हमको क्या करना है, रुपीज़ 476.45 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. So this is the multiplicand and this is the multiplier. So multiplicand we have to write in the top 476.45 multiplied by 2. Multiplier should be in the bottom. So start multiplying by 2. All of you must be knowing the table of 2. Yes. So पहले तो लो 2 का टेबल शुरू. 2 5s are 10. So 0 will be written in the answer and 1 will be taken as the carry forward and it will move to the next digit after 5, that is 4. So we will write 1 on the overhead of the 4. 4 के ऊपर हम 1 लिखेंगे because it's the carry forward. And I have circled it so that you get to know that this is the carry forward. Then multiply 2 by 4. 2 4s are 8. So add this carry forward in 8. 8 plus 1 will write 9 in the answer. Okay. Then next 2 into 6. 2 6s are 12. So we'll write 2 in the answer and 1 will be taken as the carry forward. It will move to the next digit after 6. After 6 कौन सी है next digit, that is 7, and we'll write this carry forward 1 on the overhead of the 7. 7 के सर के ऊपर हम ये carry forward 1 लिखेंगे. I have circled it so that you get to know that this is the carry forward. So next is 2 into 7. 2 7s are 14. 14 में हमने ये कैरी फॉरवर्ड ऐड करना है. 14 plus 1 will give answer equal to 15. Again it's a 2 digit number, 1 5 15. That is why we will write ones place number in the answer, that is 5. और जो 1 है tens place का number, we will write that one in the carry forward. So carry forward will move to the next digit, that is after 7, which is 4. We'll write this carry forward on the top of 4. एंड 5 जो है वो हमने आंसर में लिखा है. देन मल्टीप्लाई 2 by 4. 2 4s are 8. नाउ वील राइट 8 plus 1 that is 9 in the answer. तो ये सारा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है. बट हियर वी हैव अ डेसिमल पॉइंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू put a decimal point in answer as well. So we have to check the decimal point where we should put. तो पहले तो आपने देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लिखा है, 1 2, वंस प्लेस टेंस प्लेस, फिर क्या लिखा है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट. तो सेम वे हमने 2 डिजिट्स के बाद क्या लिखना है, डेसिमल पॉइंट 1 2, देन पुट अ डेसिमल पॉइंट. ओके, हमने हमेशा डेसिमल पॉइंट लिखने के लिए हमने कहाँ से शुरू करना है, हमने डिजिट्स काउंट करना राइट टू लेफ्ट करने हैं. कहाँ से काउंट करने हैं डिजिट्स, राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब भी हमने कोई भी डेसिमल पॉइंट लिखना है तो हमने देखना है कि राइट से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखा है. जैसे यहाँ पे 1 2, 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल पॉइंट लिखा है ना, तो आंसर में भी हम वैसे ही लिखेंगे 1 2 और फिर दे दो डेसिमल पॉइंट. ठीक है. सो आंसर इज ₹952.90. Next question C. Here we have to multiply ₹48.09 by 13. हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है. So this is the multiplicand
and this is the multiplier. So we'll write multiplicand in the top and multiplier in the bottom. So multiply 48.09 by 13. So start multiplying. If you know the table of 13, it's well and good. Otherwise you can do the one by one multiplication. Means you have to multiply first ones place number, then you have to multiply by tens place number. So for those who don't know the table of 13, I am going to solve for them like this. One by one एक digit लेके मैं solve कर रही हूँ. So 3. First of all, I will multiply by the ones place number, which is 3. 3 9s are 27. So this is the 2 digit number 27 है. तो ones place में क्या आता है 27 के 7 आता है. तो मैं 7 पहले लिखूंगी आंसर में, और कैरी फॉरवर्ड क्या आ जाएगा टेंस प्लेस का नंबर. टेंस प्लेस में क्या आया है 2. तो 2 को हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड में. सो 2 विल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 9. 9 के बाद कौन सा आता है नेक्स्ट डिजिट 0. दैट्स वाई 2 को हम लिखेंगे 0 के ऊपर. दिस इज द कैरी फॉरवर्ड. नाउ मल्टीप्लाई 3 with the 0. 3 into 0 is 0. But we have to add this carry forward also. So 0 plus 2 is 2. 2 will write in the answer. Next digit is 8. 3 into 8. 3 8s are 24. This is again a 2 digit number. So what we have to do is ones place number will write in the answer. That is why we have written 4 in the answer. और जो tens place number है that is 2. We will write it in the carry forward of the next digit. What is the next digit after 8? That is 4. That's why we have to write this 2 as a carry forward on the top of 4. After 8, the next number is 4. 3 4s are 12. So 12 plus this carry forward 2 will give you answer equal to 14. There is no number after 4. That's why we will not move the carry forward again. Directly we will write 12 plus 2 that is 14 in the answer. 1 4 14 directly answer में लिख देंगे. Okay. Now the next number we have done multiplication with the 3, but this is the 2 digit number. That's why the next number which is the tens place number, कौन सा है tens place number 1 है. तो 1 है tens place में, इसलिए हमने पहले क्या करना है ones place में either you can put a 0 और the cross. तो मैंने यहाँ पे cross लिखा है, आप 0 भी लिख सकते हो. तो वंस प्लेस में कुछ नहीं लिखना है, पहले 0 लिख दो एंड देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. जो वंस प्लेस है वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, 0 या क्रॉस लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन लिखना है. ठीक है. सो चलो शुरू करो. 1 into 9 is 9. आई हैव रिटन 9 इन द आंसर. देन 1 into 0 is 0. फिर मैंने 0 लिखा है. 1 into 8 is 8. फिर अगले नंबर पे 8 आएगा. 1 into 4 is 4. फिर अगले नंबर पे 4 आएगा. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट एडिशन. यहाँ पे क्या नंबर आता है साइन, यहाँ पे एडिशन साइन आता है. जो हमने 2 डिजिट्स से मल्टीप्लाई किया है, 3 से पहले ऊपर को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से नीचे को मल्टीप्लाई किया, तो हमने इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उनकी करनी होती है एडिशन. तो 7 प्लस दिस इज क्रॉस, मतलब यहाँ पे 0 है. 7 प्लस 0 मीन्स 7. 2 प्लस 9 इज 11. सो 1 11 कैरी फॉरवर्ड जाएगा 1. 1 प्लस 4 इज 5. 4 प्लस 8 इज 12. अगेन 2 विल बी इन द आंसर. 1 इज कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 1 प्लस 4 इज 6. सो यहाँ पे लिख दिया पूरा का पूरा आंसर. अभी आपको डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है. मैंने आपको पहले भी बोला है आपको डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट करना है. आपको डेसिमल पॉइंट के डिजिट्स राइट से काउंट करने हैं. तो 1 2 राइट टू लेफ्ट जाना है. 1 2 2 डिजिट्स के बाद क्या लिखा है डेसिमल पॉइंट. तो हम आंसर्स में भी वैसे ही लिखेंगे. 1 2 इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया. 1 2 इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया. एडिशन के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसमें भी हमने 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखना है. सो द आंसर इज ₹625.17. ओके. दिस वे वी हैव डन विद द मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी विल move on to the division sum. The question number 2, in which we have to do the divisions. So from question number 2 I am going to solve the C and D part. I want A and B part
यू टू सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, आपने ए और बी सॉल्व करना है, मैं सी और डी सॉल्व करूँगी। तो इन क्वेश्चन नंबर सी व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड ₹826.72 बाय 16। इसमें हमने ₹826.72 को 16 से डिवाइड करना है। तो पहले तो 826.72 इज योर डिविडेंड एंड 16 इज योर डिवाइजर। सो वी विल यूज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले तो ऐसे बॉक्स बनाओ, फिर डिविडेंड लिखो। क्या है डिविडेंड? 826.72 है डिविडेंड। फिर उसको डिवाइज़र से डिवाइड करना है ना, तो डिवाइज़र क्या है? 16 है। सो इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 16 इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आती है 16 की टेबल, so don't worry, what we can do is we have to round off the 16 to nearest 10। हमने जो ये 16 है जो डिवाइज़र है उसको हमने नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ करना। आई होप यू ऑल मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट 10। जो 16 के नियरेस्ट टेंस आता है, कौन सा आता है 16 के नियरेस्ट टेंस? 16 के नियरेस्ट टेंस आता है 2020। तो हमने 16 को नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ किया, दैट इज़ 20। अभी आपको 20 की टेबल तो बहुत ईजिली आती ही होगी, है। 20 की टेबल इज सेम लाइक दी टेबल ऑफ 2, जस्ट यू हैव टू ऐड 1 0 आफ्टर एवरी डिजिट। सो 20 की टेबल में देखो, आपको पहले हमें तो 16 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड द नंबर 82 बाय 16, है ना। पहले 2 डिजिट नंबर लेंगे 82, फिर 16 से डिवाइड करेंगे उसको। सो 82 को 16 से डिवाइड करना है। तो हमने लिखना है कि 20 के टेबल में विच इज़ द नंबर दैट इज़ नियर टू दिस नंबर 82। सो 20 into 4 इज इक्वल टू 80। 24 ज़ा 80। सो दैट वे वी कैन फाइंड आउट 16 इसको 4 से किया है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 16 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नियरेस्ट नंबर मिलेगा 82 के। तो 16 into 4 करने के बाद क्या आता है वो देख लो रफ कैलकुलेशन में करके। 16 into 4 इज इक्वल टू 64 आया, मैंने रफ में कैलकुलेट किया है। बट 64 और 82 का डिफरेंस इज मोर देन 16, सो दिस इज नॉट द प्रॉपर क्वोशंट। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 5। तो देख लो 16 into 5 करके कितना आता है? 16 into 5 रफ में करके देख लिया, तो 16 into 5 इज 80। तो दिस इज नियर टू दी 82। तो विल राइट इन द क्वोशंट 5। हमने क्वोशंट में क्या लिखना है? 5 लिखना है। 16 into 5 80 आया, इसलिए क्वोशंट में जाएगा 5। तो यहाँ पे क्वोशंट में आया 5। 82 माइनस 80, तो 82 माइनस 80 करने के बाद क्या आया? 2। ओके, 2। देन द नेक्स्ट डिजिट इज 6। सो टेक दिस 6 ओवर हियर। नाउ वी हैव टू डिवाइड 26 बाय द 16। 26 को किससे डिवाइड करना है? 16 से। So I already have told you we have to round off the 16 to the 20 and then start doing the start finding the quotients. So 20 into 2 is 40. So 40 is already greater than this 26. So we can't take 2 as the quotient. So 20 into 1 is 20, which is lesser than 26. So हम देखते हैं 16 into 1. 16 into 1 is 16. That's why we will write 1 in the quotient. क्या लिखेंगे हम क्वोशंट में? 1। सो 26 माइनस 16 विल गिव यू 10, है ना। क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 26 माइनस 16 करने के बाद 10 आएगा। तो देर इज़ वन मोर डिजिट दैट इज 7। विल टेक दिस 7 अहेड ऑफ दिस 10। 107 बन गया। क्या हो गया नंबर? 107। नाउ वी हैव टू डिवाइड 107 बाय 16। अगेन हमने 16 को वैसे ही 20 से राउंड ऑफ किया। तो 20 की टेबल देखो, 20 into 5 इज इक्वल टू 100। 25 ज़ा 100, है ना, विच इज़ नियर टू दिस 107। तो 16 को भी देख लो 5 से मल्टीप्लाई करके, नियरेस्ट नंबर आता है क्या 107 के। तो 16 into 5 मैंने यहाँ रफ में किया है। 16 into 5 मेरा आंसर आया है 80। बट 80 और 107 में मोर देन 16 का गैप है। तो हम क्या करेंगे? फिर से 5 के आगे कौन सा डिजिट आता है? 6 आता है। 5 से आगे आता है 6। सो 16 into 6 करके देखो, दैट इज़ 96। हाँ, तो दिस इज़ द नियरेस्ट नंबर टू 107 विच इज़ ऑल्सो लेसर दैन 107। सो 16 into 6 इज़ द 96। सो हम लिखेंगे क्वोशंट में क्या? 6। वी विल राइट 6 into द क्वोशंट। तो 6 लिख दिया क्वोशंट में।
तो 107 minus 96. So after doing the subtraction of 107 and 96 we get the remainder 1111. 11 आता है remainder में. Also there is one more digit left, that is the last digit 2. So we will take this 2 in down. 112 will be our dividend. 112 we have to divide by 16. Again we don't know the table of 16, we have rounded off the 16 to the number 20. तो 20 का टेबल बोलो जिससे कि आपको 112 के नियर नंबर मिले. सो या तो इट्स वेरी इजी, 16 इंटू 6 यू गॉट ऑलरेडी, 16 6 जा 96 है ना. सो 112 तो आप देख लो 96 इज ऑलरेडी लेसर देन 112. तो 16 इंटू 7 करके देख लो, 16 इंटू 7 ऑलरेडी आई हैव गॉट द आंसर इक्वल टू 112. सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल राइट द क्वोशंट इज इक्वल टू 7 and 112 minus 112 will give you answer equal to 0. तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 0 and there is no digit left after this 2, so we'll stop dividing over here. Now finally we have to put a decimal point. तो पहले तो हमने देखना है जो ये नंबर दिया था डिविडेंड उसमें कहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया है. कहाँ पे लगाया है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट. स्टार्ट काउंटिंग द डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट काउंट करो और कहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया देखो 1 2. सो वी हैव पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स, मतलब आंसर में भी हमने डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स लगाना है 1 2. सो वी हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 6. सो आंसर इज ₹51.67. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कीप पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द आंसर. सिमिलर वे we have to solve the next question, that is question number D.